नमस्कार। ग्लोरी ऑफ फार्मेसी प्रोफेशंस एंड आइडियल्स, जो कि एक फार्मालोग द्वारा निर्धारित रूप से प्रसारित किया जाने वाला कार्यक्रम है, जिसमें अपने फार्मेसी प्रोफेशंस से जुड़े हुए बहुत ही हमारे सीनियर प्रोफेशनल्स और आइडल्स, जिनके नक्शे कदम पर चलकर हम फार्मेसी प्रोफेशन को एक नई दिशा और दशा प्रदान कर सकते हैं, उनके बारे में जानकारी हासिल करते हैं, उनके जीवन पहलुओं के बारे में हम हासिल करते हैं और काफ़ी सारी चीज़ें हम उनसे सीख पाते हैं और उनके अनुभव हम सभी के साथ साझा करते हैं। आप आज के इस कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों, हमारे गुरुजनों और हमारे साथियों, आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। इन टुडेज प्रोग्राम वी हैव विथ डॉक्टर रंजीत बारसीकर सर, जो कि एक सीनियर प्रोफेशनल हैं और आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले मैं वेलकम करता हूं सर आपका। धन्यवाद। और आपके दर्शकों, आपके सभी सुनने वाले और गुरुजन वर्ग को मेरा नमस्कार। Thank you, sir. Before starting the program, I would like to give some introduction about today's guest, Dr. Ranjit Barsigar, sir. In the career span of 54 years, he have rich and varied experience in the pharma industry, especially in the quality management, R&D, manufacturing, regulatory, US FDA, EU, WHO, and different compliances. Sir, currently working as CEO in QBD International, which is a quality by design and current GMP consultancy for the pharma and biopharma companies, and also United Nations Advisor, Geneva. Sir has expert on artificial intelligence, quality data, autonomous applications, quality by design, data integrity, quality culture, validations, and different various respected areas. Sir have various vast experience for the compliance audit and inspections, literally conducted more than 100 audits and inspections in 52 years of his career in India, Saudi Arabia, Oman, China, USA, EU, Brazil, Mexico, Malaysia, etc. And given more than 500 presentations globally in the conferences as a chair or keynote speaker organized by different countries or organizations like WHO, the Government of India, FDA of Gujarat, Maharashtra, IPQC, FDA of Karnataka, etc., and addresses more than 154 webinars and live talks in various subjects of pharma related, and have different articles and interviews published throughout the world. And he's a global leader in the case of QBD design and the quality management. Sir, I welcome you. And first of all, first question, which is a very genuine question for our audience, that could you please share about your early education and family background with our audience? Yes, thank you very much, Doctor. Very good afternoon to all our audience today. आपके सभी सुनने वाले स्टूडेंट्स, द गुरुजन वर्ग, सभी को मेरा सादर प्रणाम। और आप सभी को आज के गुड़ी पाड़वा के मंगलमय दिन सभी को मैं वेरी हैप्पी गुड़ी पाड़वा। ये महाराष्ट्र में स्पेशली, और दोज महाराष्ट्रियंस ऑल ओवर द वर्ल्ड, wherever they are spread, they celebrate today as a most auspicious day of the year to start the new work and a happy new year perspective. So आप सभी को मेरी तरफ से शुभकामनाएं। Thanks to Amit ji for inviting me today for this very popular YouTube channel of Pharmalok. Thanks also to Dr. Parjanya Shukla ji for talking to me today on various aspects of my experience of last 52 years. डॉक्टर साहब, आपने मुझे पूछा कि मेरा एजुकेशन कहाँ हुआ, कैसे हुआ, क्या क्या एक्टिविटी आपने की स्कूल में, कॉलेजेस में स्पेशली।
So I'm very happy to share with you that my native place is Ahilya Nagar. Earlier it was Ahmednagar, between Sambhaji Nagar and Pune in Maharashtra. Okay. My father, late Govardhan Das Barshikar, was a very big journalist in India, editor of a local newspaper, Lokayug, and he was awarded Best Journalist Award by our ex-president, late Dr. Jai Singh. My mother was a housewife, and I have elder sister who is residing in Canada, and I have two younger brothers doing their respective areas of expertise in various fields. My school and college education was partly in Ahilya Nagar and partly in Pune University. I did my master's science in biochemistry from Pune University in 1971. And then I joined the pharmaceutical world in 1971 June. Subsequently, during my career with Pfizer Limited India, I did my computer management courses from Ruia College, Matungana, Mumbai in 1977, and along with my that time close friend who is now no more, Mr. Rajiv Mule. So it was a very good situation and excellent experience for me for earning as well as learning situation. That time, my friends, the computer systems and its applications to the industry, to the education system was just booming up, and lot of interest was there amongst the society to know what is this computer system, how it is operated, how the softwares are made, how it is generated. And therefore it was more interesting for me, and I was very much encouraged by my company Pfizer Limited that time to do those courses in computer science, which is that time it was called Diploma in Computer Management. So this is about my educational background, Dr. Saab. Thank you, sir. After the next question is, after completing your school education, what inspired you to pursue a career in the pharmacy, and what are the challenges and opportunities did you observe in the field of pharmacy during that time? Because it is a very long ago. So what are the challenges and opportunity you observe in the field of pharmacy during that time? It is very interesting question, doctor. And the situation, as you rightly mentioned, it was totally different almost Yes, sir. 54 years back. And that situation was such that we used to get admission anywhere, wherever we want, because of the less number of students, as well as uh, engineering. It was comparatively very easy to get admission than the doctor's degree. But however, since I was staying in Ahmednagar, and my Ahmednagar college that time, that is today's Ahilya Nagar, was having these programs of Master of Science at the location as well as in Pune University together, and few weeks in Ahilya, few weeks in Pune. So it was comparatively
biochemistry was upcoming subject, and I was very much curious what is this biochemistry subject as such. And though I had done my bachelor's in chemistry, I was very much curious about the biochemistry subject, and never knowing that at later stage of my life I will really use that knowledge and to expand further, enhance further in my career from learning perspective, and use it to my during my industry career for the organization's benefit, and as well in turn my benefit as so. So when I completed this my Master of Science in Biochemistry in 1971, 71 में मैं जब ये बम्बई आया तो बम्बई में उस समय टाटा कैंसर रिसर्च इंस्टीट्यूट परेल मुंबई में बहुत ही फेमस था वो टाइम में, एंड वो उतना ही एक इंस्टीट्यूट पॉपुलर था ऑल ओवर इंडिया, नो अदर ब्रांचेस टू दैट। तो उन्होंने मुझे इंटरव्यू के लिए बुलाया क्योंकि मेरा बायोकेमिस्ट्री सब्जेक्ट था मास्टर ऑफ साइंस के लिए। एंड इंटरव्यू में सब बड़े लोग बैठे थे, इंक्लूडिंग द हेड ऑफ द डिपार्टमेंट एंड द कैंसर रिसर्च इंस्टीट्यूट प्रेसिडेंट दैट टाइम। एंड आफ्टर अबाउट हाफ एन आवर डिस्कशन दे सेड दैट आप कभी यहाँ हमारे यहाँ ज्वाइन हो सकते हैं। तो मुझे तो थोड़ा सरप्राइज हुआ, तुरंत जॉब ऑफर किया उन्होंने, और उसके बाद में मैंने बताया कि आप जब भी कहें हम ज्वाइन हो सकते हैं, क्योंकि मैं अभी फ्रेश पोस्ट ग्रेजुएट हूँ। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, आप जुलाई में ज्वाइन करिए। और तभी मैंने हाँ बताया उनको, और फिर अहिल्यानगर को चला गया। मेरे पिताजी को बहुत आनंद हुआ, मेरी मम्मी को भी बहुत आनंद हुआ कि पहले ही इंटरव्यू में मुझे जॉब मिल गई बम्बई में। लेकिन आपको बताने में थोड़ा तकलीफ होता है मुझे, लेकिन वो टाइम में मुझे बम्बई में रहना कहाँ वो तकलीफ था, वो बम्बई में रहने के लिए जगह ढूंढने का भी तकलीफ था, और किसको बताऊं, किसको पूछूं। तो मेरे पिताजी ने बताया कि आप चले जाओ वहां, उन्होंने जिस दिन बुलाया है, और उनको ही पूछो, वो सब गाइड करेंगे आपको, और वो हमेशा सही आपको गाइड करेंगे। तो वो पिताजी ने जो बताया वो तरफ से मैं बम्बई में आया। वो जुलाई 71 में बस से उतरा, तभी भी मुझे मालूम नहीं था कहाँ जाना है मुझे। तो वो वहाँ उतर के वो एक रेस्टोरेंट था, वहाँ चाय पीते पीते हमने वहाँ उनको पूछा रेस्टोरेंट में कि ये इंस्टीट्यूट में मुझे जाना है, तो कहाँ जाना है, कैसे जाना है। और उन्होंने मुझे एड्रेस तो बताया था परेल का, और हम तो दादर उतरे थे, तो मेरे लिए तो सब नया ही था ये सिचुएशन। तो उन्होंने कहा कि देखो भाई साहब, आप बम्बई में पहली बार आए हो क्या? तो मैंने बोला हाँ, मुझे मैं अभी बस से उतरा हूँ, मुझे अभी नहाना है, कपड़े चेंज करना है, फिर मैं उधर जा सकता हूँ ना इंस्टीट्यूट में। तो उन्होंने फिर उनका एक पहचान वाले भाई साहब थे, उनसे मेरी मुलाकात कराई और कहा आप 1 घंटे के लिए उनके वहाँ जाइए, फ्रेश हो जाइए, और फिर आप इंस्टीट्यूट के लिए जाइए, यहाँ से बहुत ही नज़दीक है। ये एक दादर से परेल, उन्होंने जो बस नंबर था वो टाइम में BEST का, वो भी उन्होंने बताया था। फिर मैं वो हिसाब से फिर इंस्टीट्यूट गया 9 बजे, और इंस्टीट्यूट में मैं पहुंचते ही, टाटा कैंसर रिसर्च इंस्टीट्यूट में पहुंचते ही उन्होंने मेरा स्वागत किया और बताया कि आपको रहने का इंतज़ाम हुआ नहीं हुआ,
कुछ तकलीफ है तो बता दो, पूरा आपको दिन भर में हमारे लोग आपको मदद करेंगे। तो उसके बाद में मैं बहुत ही रिलैक्स हो गया और अच्छा ही लगा कि तो इंस्टीट्यूट इतनी फिक्र करती है जो यहाँ काम को आते हैं। और वो हिसाब से उन्होंने मुझे उनके सेक्रेटरी को बताया कि वो मेरे साथ में आ गए और हम दोनों भी जगह के लिए उन्होंने जो बताया था वो जगह पे जाके वो रूम में हम रहना लगे। तो वो डिफिकल्ट टाइम था और टेंशन में भी था मैं कि मेरे को जगह नहीं मिला रहने को बम्बई में, तो क्या करूं, कहाँ जाऊं। और मुझे होटल वगैरह भी कुछ मालूम नहीं था वो टाइम में। फिर भी इंस्टीट्यूट की वजह से मेरा आगे का सब प्रवास सुखकर हो गया और बाद में कुछ तकलीफ नहीं हुआ। लेकिन इसमें मुझे एक सीख मिली कि आपको पहले तो कहीं डरना नहीं है किस चीज के लिए, हमेशा अपना मुंह खुला रखना चाहिए, यानी पूछना चाहिए हमेशा अलग अलग लोगों को कि हम जी सही रास्ते पर है नहीं है क्या है। और हमेशा कॉन्फिडेंटली बातें करनी चाहिए, डर के नहीं किसी के साथ में। तो वो पहले ही दिन मुझे बहुत अच्छी सीख मिली थी और उसका मुझे आज तक बहुत ही बड़ा एडवांटेज हो रहा है, जो हमने हमारे बच्चों को भी सीख दी है। वहाँ कैंसर रिसर्च इंस्टीट्यूट में हेड ऑफ द डिपार्टमेंट वो समय थी डॉक्टर मिसेस ब्रैगांजा, and very knowledgeable and had a very high patience in talking and experience because of her expertise in biochemistry subject. And she was always keeping smiling, and she said that you also must keep smiling throughout your work and whole life. And that completely eased me, relaxed me, that I am at right place in safe hands of people here, safe institute. सो दैट वाज अनदर सी। उन्होंने मुझे कहा कि हमेशा हंसते रहो, निराश कभी नहीं होना, नेगेटिव कभी नहीं होना। तो ये सब लर्निंग जो है वो मुझे पहले ही करते हुए, डॉक्यूमेंट पढ़ने के बाद, प्रोसीजर्स पढ़ने के बाद बहुत सारी बातें मेरे समझ में आ गई। और पहले ही दिन से मैं I was planning very well for data collections. The institute had several programs those days in 71, 72 for fresh graduates and postgraduates coming to the institute, which I did very happily. And I picked up the knowledge as well as learned typing also there, because that time it was only typing. There was no computer, laptop, nothing, no mobile, nothing. So I realized that time that hard work, honesty will always help you to quickly overcome the challenges. उसमें और एक एडवांटेज मैं आपको बताता हूँ शुक्ला जी, इज वो टाइम में टाटा हॉस्पिटल में डॉक्टर पृथ्वीराज कपूर एडमिट हुए थे, उनको कैंसर हुआ था जी। और उनके सब बेटे बॉलीवुड इंडस्ट्री के सब हीरोइंस और अदर प्रोड्यूसर्स वो वहाँ आते थे उनको मिलने के लिए सुबह शाम। तो हम भी क्यूरियस थे, वो हीरो लोग कैसे देखते हैं क्या है, तो हम जाते थे उधर, उनके साथ में खड़े रहते थे। और जब भी अभी मैं सोचता हूँ 54 साल पहले की बात, तो वो टाइम में अभी लगता है कि वो टाइम में अपने पास मोबाइल होता तो कितना अच्छा था, फोटो ले लेते थे। तो वो मुझे एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था कि ये बॉलीवुड के हीरो हीरोइंस वगैरह सबको मैं बहुत नजदीक से देखा वो टाइम में, और वो बहुत अच्छी तरह से बातें करते थे, तो वो अच्छा लगा मुझे। So this was the initial stage of my Mumbai visit. थैंक यू सर। जैसे कि हमारे दर्शक सुन पा रहे हैं आपकी जो इंटरेस्टिंग स्टोरीज हैं,
और उससे काफ़ी कुछ सीखने को है, जो हमारे बच्चे खास करके जो देख पा रहे हैं कि जब हम स्टडीज़ करते हैं और किसी पर्टिकुलर फील्ड में प्रोफेशनल एजुकेशन ले लेते हैं, जैसे आपने बायोकेमिस्ट्री में लिया, बच्चे फार्मेसी पढ़ रहे हैं या बीटेक कर रहे हैं, इंजीनियरिंग कर रहे हैं, उसके बाद स्किल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे कि आपने कहा कि उस टाइम पर भी कंप्यूटर्स हैं, टाइपिंग स्किल है, वो आपने बाद में जाकर के सीखी और वो Yes, आपको प्रोफेशनली आगे बढ़ने में बहुत मदद की। तो ये सारी true. चीज़ें भी लोगों को आनी चाहिए एंड ये आपसे हम लोग सीख सकते हैं। सर, बहुत ही बढ़िया लगा आपसे ये सारी जानकारी लेकर के। अब हम चलते हैं थोड़ा सा टेक्निकल बातों पर आते हैं अपने अगले प्रश्न में। जैसा कि हम सभी जानते हैं, your favorite areas of work are expertise including in quality by design, artificial intelligence, quality management, regulatory affairs, etc. So kindly explain the significance and application of quality by design principles in the pharmaceutical process and development. Yeah, it's a very good question, Dr. Saab. Thank you, sir. Quality by design concept was really was the initiative by US FDA almost 15 years back, a little more than that, you can say. And this was initiated for the product development perspective, for the safety and efficacy and quality of the product for patient's life. And this was applicable for branded and generic drugs to begin with. Coming to your question कि QBD क्या है, जी, किस लिए है, तो लगभग मैंने आपको बताया कि 15 साल पहले यूएस एफडीए ने ये इनिशिएटिव लिया और उसका कारण था, सही कारण था उनके पास। क्यों उन्होंने इंडस्ट्री को सिखाया ये टेक्नोलॉजी, दैट इज क्वालिटी बाय डिजाइन? क्योंकि वो समय ऐसा था कि यूएस मार्केट में बहुत सारे शॉर्टेजेस ऑफ द ड्रग्स होते थे और उनका कारण ये था शॉर्टेजेस का कि बहुत सारे प्रोडक्ट एडवर्स रिएक्शंस आते थे पेशेंट्स को, जी, कुछ प्रोडक्ट्स रिकॉल होते थे और बहुत सारे रिकॉल्स वो क्वालिटी के वजह से होते थे। एंड वो समय मेरे को याद है कि लगभग 62% क्वालिटी इश्यूज वेर अफेक्टिंग द सप्लाईज। तो 62% ऑफ द impact of the shortages, the reason was the quality problems in the products, and this number was including multinationals as well as the generic companies both, and it was globally, this impact was globally of shortages and the quality issues. So here what was happening, traditionally we were doing product development by trial and error method, one change at a time in the experiments for development of a product. तो उसमें प्रोडक्ट डेवलपमेंट को बहुत समय लगता था और फिर भी आपको वी वर नॉट श्योर कि सही दिशा में हम डेवलपमेंट हो रही है क्या नहीं, क्योंकि एक चेंज करना फिर एक्सपेरिमेंट्स करना, अगर वो सही है तो दूसरा चेंज करना फिर एक्सपेरिमेंट करना, तो उसमें टाइम बहुत जाता है और फिर भी मैक्सिमम एडवांटेज नहीं मिलता था, ऑप्टिमम कंडीशंस के एडवांटेज नहीं मिलते थे। इसके लिए क्वालिटी बाय डिजाइन टू हैंडल द शॉर्टेजेस by US FDA in the interest of US citizens, they took these initiatives and started educating the industry. So this was a systematic approach to the development of the product, finished product, that began with the predefined objectives, which was emphasizing that product and process understanding throughout the activity, throughout the development. And here the process monitoring or process control was based on sound science and
quality risk management the key area for whole development aspects. So science-based manufacturing process, consistency in manufacturing processes, batch after the batch, unit after the unit, it should comply with the regulatory requirements, and enhancing the process understanding and continuous process improvement with the help of risk-based assessment of all the critical uh, parameters, attributes, that is, a critical quality attributes, critical process parameters, critical material attributes, design space, control strategy, life cycle management. All these were the elements, and the US FDA educated the industry to ensure the robust process development and the robust control strategy. This was helping, and today also it is helping to minimize the rejections, reworking of the batches, and maximum output, thus saving the cost of the companies because of the minimum rejections, minimum reworking in the organization. And it was reducing the variabilities of the input material. And earlier days, traditionally, it used to be locked process variables in the manufacturing process because of variable inputs. So it was like garbage in, garbage out activity. So आप अगर आप वेरिएबल इनपुट प्रोडक्ट में डालते हो तो प्रोडक्ट क्या कैसा निकलेगा, वेरिएबल क्वालिटी का प्रोडक्ट निकलेगा. जी. तो उसके लिए वो समय में USFD initiated, and I have seen myself that it has benefited overall all the companies in the world to develop the product from that perspective, because now, because of quality by design, we are thinking on patient centric product development, patient centric quality and safe product perspective. Therefore, this was a great thing to happen in the product development perspective. So quality by design brings a very stable product, consistent manufacturing process, consistent output, that is, every batch which is coming out after the release from the quality control, quality assurance lab will definitely comply till the end of shelf life, and throughout the life cycle it can be monitored easily. The same concept was also further applied to active pharmaceutical ingredient, that is drug substance, and also it is now being used for the analytical methods development. So the scope is now right from drug substance to finished product to analytical method development. That's how we have to look at whole scenario of quality by design. थैंक यू सर. जैसा कि हमारे दर्शक देख पा रहे हैं कि क्वालिटी बाय डिज़ाइन के जो सिद्धांत हैं, जो प्रोसेसेस हैं, उससे फार्मास्यूटिकल मैनेजमेंट में और फार्मास्यूटिकल प्रोसेस डेवलपमेंट में हम देख पाते हैं कि जो कॉस्ट इफेक्टिव है, जैसा सर बता पा रहे हैं, कॉस्ट इफेक्टिव भी हो जाता है और टाइम मैनेजमेंट भी हो रहा है, जो दो बहुत ही बड़ी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं फार्मास्यूटिकल प्रोसेस में, ताकि वो आसान तरीके से कंपनीज को भी फायदा पहुंचाएं और कंज्यूमर तक भी वो फायदे पहुंच पाए. तो सर, जैसा कि अभी आप थोड़ी देर पहले बोल रहे थे कि आप जब आपने शुरू की तब उस समय मोबाइल फोन्स नहीं थे और कैमरेज भी आसानी से अवेलेबल नहीं थे, टेक्नोलॉजी जो है वो बहुत ही कम थी, नई थी, और आपने पूरा 360 चेंज देखा होगा, क्योंकि हम लोग भी पिछले 35-36 सालों में तो हमने भी बहुत सारे चेंजेस देखे, लेकिन आपने हम लोगों से भी बहुत ज़्यादा चेंजेस देखे और आपने देखा कि सब कुछ काफ़ी कुछ बदल चुका है. आज टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम इतने दूर बैठ करके एक दूसरे के साथ बात कर पा रहे हैं और हमारी बातचीत बहुत लोगों तक पहुंच रही है. तो ये सब कुछ टेक्नोलॉजी से ही आया, और इन टेक्नोलॉजी में भी आजकल पिछले कुछ समय से, खास करके कोविड के बाद, एक शब्द जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये बहुत तेजी से ग्रो किया है और आज इसके बारे में हर जगह बातें हो रही हैं. और सर, आपने इस पर भी काफी काम किया हुआ और आपकी एक्सपर्टीज है. तो अगला प्रश्न जो है सर इसी से जुड़ा हुआ है कि आपके व्यू में जो रोल ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन फार्मास्यूटिकल क्वालिटी सिस्टम एंड प्रोसेस, उसको आप कैसे देखते हैं, एंड कुड यू शेयर
some examples of AI implementation in the pharmaceutical sector. Yes, yes, doctor. This is a nice question and my favorite subject as well. No doubt Yes, sir. about that. See, artificial intelligence is a boon to our industry. Let me be very frank, okay? Yes, sir. And when we talk of artificial intelligence, no doubt we are handling with the different type of softwares, and therefore we call it as a digitalization and the emerging technology perspective, which is a big revolution in the pharma industry. These are very useful from the perspective of quality and compliance perspective, because you know we are in the era of industry 4.0, or we call it pharma 4.0, which will get soon uh, changed to pharma 5.0 in another few years time from the technology perspective. And therefore, when we talk of artificial intelligence, there are several tools with the artificial intelligence. But let me discuss with you, my friends, कि ये artificial intelligence क्यों आया और उसका एडवांटेज क्या है फार्मा इंडस्ट्री को. तो बाकी हर इंडस्ट्री में तो एडवांटेज है ही, लेकिन फार्मा इंडस्ट्री में क्या एडवांटेज है वो जरा हम डिस्कस करें तो अच्छा रहेगा, ऐसा मुझे लगता है. थोड़ा मैं few minutes उसके ऊपर मैं डिस्कस करूंगा. नाउ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मूल कारण क्या था कि फार्मा कंपनियों को बहुत सारे चैलेंजेस अभी भी है, कुछ बरस पहले भी थे, कि कॉस्ट वाज इंक्रीजिंग and the cost of the product, since it is high, because of the input cost is high, it was creating some uncomfortable situations to the patients also. Another area उनको जो इंडस्ट्री को तकलीफ वाला जो था कि प्रोडक्ट डेवलपमेंट हमारा जो हमने क्वालिटी बाय डिजाइन की अभी बात की, उसमें एडवांटेज तो मिला कि बहुत सारे चेंजेस हम एक साथ में 2 या 3 चेंजेस एक्सपेरिमेंट में साथ में कर सकते हैं, तो हमारा टाइम कम लगता है एक्सपेरिमेंट होने को. उसके लिए क्वालिटी बाय डिजाइन से हमारा टाइम जो है 30 to 40% सेव होता है प्रोडक्ट डेवलपमेंट को. तो ये एआई के लिए एक जो हमारा कमर्शियल पेन पॉइंट था कि डिले in launching the product because of some or the other problem last minute or during the development. और तीसरा प्रॉब्लम जो था, मैंने जो आपको डिस्कस किया पहले, कि रिकॉल और क्वालिटी इश्यूज का. तो अगर हम एआई यूज करते हैं तो उसमें एडवांटेज हमको ये रहता है कि इफेक्टिव क्वालिटी एंड प्रोसेस मॉनिटरिंग होता है, मोर एक्यूरेट डिजाइन स्पेस हम क्वालिटी बाय डिजाइन का प्रेडिक्ट करके वो इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, टाइमली लॉन्च होता है, हमारा कॉस्ट कम हो जाता है डेवलपमेंट का, और हम प्रेडिक्टिव एनालिटिक्स के तरफ बढ़ते हैं. इसका मतलब ये हुआ कि जब भी हम एआई यूज करेंगे प्रोडक्ट डेवलपमेंट और प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग और टेस्टिंग में, रेगुलर कमर्शियल बैचेस में, तो वो जो प्रोसेस चलती है उसमें हमने आपको बताया कि क्रिटिकल एट्रीब्यूट और क्रिटिकल प्रोसेस पैरामीटर मॉनिटर करने होते हैं. और ये जब भी हम आइडेंटिफाई करते हैं तो उसको मॉनिटरिंग एआई की वजह से बहुत आसान हो जाता है. और ये एआई क्या करता है कि वो प्रोसेस फेल होने के पहले, वो सीक्यूए और सीपीपी में कुछ प्रॉब्लम आने के पहले वो एआई बताता है कि ये चीज में गलत हो सकती है, उसको आप एड्रेस करिए, उसको प्रिकॉशन लीजिए, उसके प्रोसीजर देखिए, और वो हमको 2-3 सुझाव देता है एआई कि क्या करना है वो प्रॉब्लम निकालने के लिए. वो प्रॉब्लम आने के पहले बताता है और फिर हम वो स्टेप लेते हैं
तो प्रॉब्लम नहीं आती है. तो प्रेडिक्टिव क्वालिटी एनालिटिक्स इज अ बिग एडवांटेज in AI, and that is helping us today in our manufacturing consistency, above over and above quality by design activities. तो उसका क्वालिटी और प्रोडक्शन रिलेटेड एक्टिविटीज आर गेटिंग सिंक्रोनाइज. हम अभी बात कर रहे थे फार्मा 4.0, और जी ये जो है फार्मा 4.0 ये प्रेडिक्ट करता है व्हाट विल गो रॉन्ग and when and how to avoid it. This is what I was talking to you early just now. So predicting the in advance what can go wrong, what is likely to go wrong, when it will go wrong, and how you can avoid that error, that problem. And that is where the biggest advantage of quality monitoring and using artificial intelligence with the automated process controls, the sensors throughout. So we are, what is happening now, earlier days or even today to some extent, we are always in a reactive mode in manufacturing and testing. So we are now moving towards proactive approach to avoid the problems. But further, with the help of artificial intelligence, we are predicting the failures in advance, taking care of that, and we are stopping the failures. So this is a very, very big advantage. Some example, since you requested me, Dr. Saab, जी सर. artificial intelligence, when it was used in a product development, it has the advantage of screening the newer molecules, and thousands of molecules it can screen within fraction of minutes. And AI has a tremendous capacity to read, judge, and give accurate information based on the data collected, because earlier we were not knowing if we are developing or generating billions of data point every day in the Yes. manufacturing site. Now we know it because of AI, and now AI is seeing all that data within minutes and guiding the company, taking the right decision. So which is a big advantage. So screening the molecule is a big boon for industry with the help of AI. And such example I would like to give you is in the USA, with the help of machine learning algorithm, Massachusetts Institute of Technology, they developed a new antibiotic called Halicin, Halicin, which kills several strains of bacteria. And this Halicin experimentally has been proven that it has prevented development of antibiotic resistance in E. coli. So current certain antibiotics, we know it has a lot of, within few years it develops resistance in the body. But जी whereas this Halicin has not shown any resistance so far. Whatever experiments have been done and data has been published, which, so it has been proven a big advantage that AI is helping to get one of the best antibiotic screening molecule, and that also with a high speed to save the time. Similarly, हम लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जो बात करते हैं उसका एप्लीकेशन होता है क्लिनिकल रिसर्च और क्लिनिकल ट्रायल में भी होता है, जी जहां आइडेंटिफाई कैंडिडेट्स को, जो वॉलेंटियर्स होते हैं उनको टाइमली आइडेंटिफाई करना, उनको फास्टर एनरोल करना अपने रिसर्च सेंटर में, उनको आप रिमोट मॉनिटरिंग कर सकते हो, रियल टाइम डेटा एक्सेस करके फॉर सेफ्टी ऑफ द डेटा
हम लोग एआई यूज करते हैं फॉर ऑल्सो इन इंक्रीजिंग द एफिशिएंसी of records generation to reduce the data errors. So that was another advantage we get. So thus it improves the trial quality. It also reduces the trial time. Almost 50% time is saved of clinical trials of almost those companies who have started using this. And it recruits the patients in minutes. So it has a tremendous advantage from reading the text and the data in seconds, which is not possible to human. Cost savings and speed of the operation. There are some companies are also using Dr. Saab and my friends कि वो डॉक्यूमेंटेशन में एसओपी लिखने में एआई की मदद लेते हैं अभी जी एआई उनके एल्गोरिथम क्रिएट करके उनको किस डेटा उसमें डालने के बाद वो एआई सजेस्ट करता है कि आपकी एसओपी में क्या क्या इंक्लूड होना चाहिए कि जो ह्यूमन एरर को मिनिमाइज करता है और उसके लिए एसओपी में राइटिंग फिर बहुत सारे कंपनियां यूजिंग अभी एक कंपनी यूज कर रही है टॉक्सिसिटी मॉडल प्रेडिक्ट करने के लिए जी और वो बहुत अच्छा एडवांटेज है और उनका वो कंपनी का ऐसा करना है कि अभी शायद हम एनिमल टेस्टिंग जो करते हैं टॉक्सिसिटी स्टडीज के लिए शायद वो रिप्लेस करेंगे प्रेडिक्टिव टॉक्सिसिटी मॉडल से एंड प्रेडिक्टिंग लॉन्ग टर्म टॉक्सिसिटी तो ये बहुत ही बड़ा एडवांटेज है उसके बाद में एआई का एक जो टूल है दोस्तों उसमें एक रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन रिमेंबर दिस एक्सलेंट थिंग एंड ये ऑटोमेटिंग batch releases, generating the audit trail data, which is a big advantage to the manufacturing site, especially in quality control lab, for minimizing the data integrity issues. It completely checks every second the data generated by all the instruments automatically. So that's the robotic process automation. And this AI RPA is also being used in corrective and preventive actions process, data integrity, supply chain management, thus reducing the cost. And also the robotic process automation has shown a great encouragement to the industry by using it in sterile manufacturing activity, thus minimizing the contaminations. And the hand robots are used in to avoid the human intervention, जिसकी वजह से पहले बहुत सारे रिजेक्शंस होते थे. Human is the biggest thing which is contributing to the contaminations of the product while manufacturing, especially liquid injections, powder injections. तो ये आरपीए टूल जो है इज टेक्स केयर ऑफ ऑटोमेटिकली होल मॉनिटरिंग द स्टेराइल एरिया एंड मॉनिटरिंग द प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग द इंजेक्टेबल्स, thus minimizing ह्यूमन इंटरवेंशन. वो फेक मेडिसिन भी आइडेंटिफाई करता है एंड अभी कुछ लोग ये चालू किया है यूज करने को that AI tools like augmented reality, virtual reality, mixed reality, etc., for various purposes in the industry. So such technologies, dosto, the speed of product development, timely launches, cost effectiveness, proactive approach, transitioning to the predictive approach, and predicting the quality, predictive maintenance
इसका मतलब क्या हुआ, जो इक्विपमेंट पूरा मॉनिटर करता है एआई, तो और ये एआई में जो डेटा कलेक्ट होता है उसके ऊपर से वो कहता है कि कौन सी इक्विपमेंट, कौन सा मशीन आगे चल के कितना दिन में प्रॉब्लम दिखा सकता है। 4 हफ्ते बाद अगर प्रॉब्लम होने वाला है तो वो पहले ही बताता है ये मशीन का ये प्रॉब्लम आने वाला है, उसको आप मेंटेनेंस में ले लो तुरंत, तो ये प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो इसको हम प्रेडिक्टिव मेंटेनेंस बोलते हैं। एंड देयरफॉर दिस एआई इज अ ग्रेट boon to our pharma industry दोस्तों, because it effectively monitors complete manufacturing and testing activities to ensure a patient-centric product manufactured at site for safe and safety and the quality of the product in the interest of patients. थैंक यू सर। आपने वेरियस एस्पेक्ट जो है हमारे एआई के वो आपने बताया कि वो क्लिनिकल ट्रायल्स में मदद कर पा रहे हैं, उसमें मदद करते हैं, प्रोडक्ट डेवलपमेंट में मदद कर रहे हैं, हमारे नए तरीके के जो क्या नाम है क्वालिटीफाइड डिज़ाइन करने में उसमें मदद कर पा रहे हैं, और Yes. डेटा कलेक्शन उसका प्रोसेस करने में भी समय कम लग रहा है, क्वालिटी प्रोडक्ट जो है वो निकल करके आ रहे हैं। ये सारी चीज़ें जो आपने बताई वो काफ़ी सही। अच्छी हैं, और हमारे जो स्टूडेंट्स और हमारे जो साथ के लोग इसको देख पा रहे हैं, दर्शक हमारे, वो सभी इससे सीख करके इस विधा से डरने की आवश्यकता नहीं है, इस टर्म से डरने की जरूरत नहीं है, इसके साथ अब रहने की और इसके साथ सीख करके आगे बढ़ने की जरूरत है, जैसा कि आपने Absolutely. बताया। बहुत तो सही सर, कहा। इसमें जो डेटा एक शब्द आ रहा है, बार बार डेटा आ रहा है, और हम जब हाँ, खास करके इंडियन परिप्रेक्ष्य में बात करते हैं, जो हमारा इंडियन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है वहाँ पर भी, तो हम काम करते वक्त बहुत सारे डेटा कलेक्ट करते हैं, और उस डेटा कलेक्शन में एक टर्म आता है सर, क्वालिटी डेटा, एंड देन yes, फिर डेटा इंटीग्रिटी। तो दो टर्म्स हैं जो कि आज के जनरेशन को थोड़ा समझना चाहिए। एंड yes. सो अगला जो प्रश्न है वो हमारा इसी से जुड़ा हुआ है। प्लीज एक्सप्लेन द डेटा इंटीग्रिटी एंड द क्वालिटी डेटा इन सिंपल टर्म्स, and what are the major challenges you have faced during the maintenance of data integrity, and how did you address them in the pharmaceutical industry? आपने तो बहुत सही क्वेश्चन पूछा है। क्वालिटी डेटा और डेटा इंटीग्रिटी। Yes sir. डेटा इंटीग्रिटी, डॉक्टर साहब, द होल इंडस्ट्री इन द वर्ल्ड हैज फेस्ड दिस प्रॉब्लम। Yes sir. एंड डेटा इंटीग्रिटी का मतलब क्या होता है कि जितना भी डेटा जनरेट होता है ऑर्गेनाइजेशन में, वेदर इट इज एक्यूरेट, कंप्लीट और रिलायबल है या नहीं है। और ये दुनिया में ये पहली बार चालू हुआ कुछ लगभग 15 साल पहले। कुछ कंपनियों के ऑडिट में यूएस एफडीए ने पाया कि ये कंपनी गलत कर रही है और उनका डेटा विश्वास रखने लायक नहीं है। कुछ डेटा मैनिपुलेट हुआ है, कुछ बैचेस फेल होते हुए भी रिलीज कर दिए गए हैं मार्केट में। तो वो हिसाब से बात बनती, बहुत सीरियस होती है, और उसका परिणाम पेशेंट्स को भुगतना पड़ सकता है। वो ध्यान में रख के ये सब चीज़ बहुत सीरियसली ली गई यूएसएफडी की तरफ से, और उन्होंने डॉक्यूमेंट इश्यू किया जल्दी से जल्दी कि ये बात होनी नहीं चाहिए कंपनियों में, और सही डेटा आना चाहिए कि जिसकी वजह से प्रोडक्ट सेफ हो और पेशेंट को कोई तरह का धोखा नहीं है, और पेशेंट सही मेडिसिन ले रहा है, ये उनके में विश्वास पैदा होना चाहिए। तो वो इंडिया में भी तकलीफ हुआ। दुनिया में बहुत सारी कंपनियों को यूएसएफडीए ने वार्निंग लेटर दिया, वैसा ही जेनेरिक कंपनियों के भी दुनिया में वार्निंग लेटर दिए। चाइना हो, इंडिया हो, एशियन कंट्रीज हो, गल्फ कंट्रीज हो, या यूरोपियन कंपनीज हो, या अमेरिकन कंपनीज हो, सब उधर उन्होंने ये प्रॉब्लम पाया। ग्लोबल इश्यू था ये, खाली इंडिया के लिए नहीं, ग्लोबल इश्यू था। इसके लिए एक
उसमें डेटा इंटीग्रिटी के बारे में उन्होंने थोड़ा बहुत सारे सुझाव दिए, डॉक्यूमेंट गाइडलाइन इशू की और इंडस्ट्री को एजुकेट किया कि क्या करना है, कैसे ये प्रॉब्लम निकालना है। और उन्होंने उसके लिए कुछ बातें भी कही क्वालिटी डेटा के लिए। तो उन्होंने कहा कि क्वालिटी डेटा रिफर्स टू द डिग्री टू विच डेटा मीट्स द expectations of the quality data. They defined as accuracy of the data, validity of the data, completeness of the data, consistency of the data, and timely reporting. तो ये सब इंश्योर करता है रिलायबल एंड ट्रस्टवर्दी इंफॉर्मेशन फॉर द एनालिसिस, रिपोर्ट और डिसीजन मेकिंग के लिए। तो क्वालिटी डेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, नो डाउट। देर आर दोस्तों quality characteristic of which you should be aware that the quality data is definitely the accuracy of the data, completeness of the data, reliability, relevance and timeliness of the data. टाइमलीनेस का मतलब ये होता है कि जब भी आपने काम खत्म किया वो टाइम में ही एंट्री होना चाहिए डॉक्यूमेंट में और उधर ही आपका सिग्नेचर आना चाहिए वही मूवमेंट को। आप बोलेंगे मैं 2 दिन के बाद करूंगा वो सब, तो वो गलत होता है जी। टाइमलीनेस ऑफ द एंट्री ऑफ द डेटा इज वेरी इंपॉर्टेंट। और उसमें डेटा क्वालिटी में स्टैंडर्ड्स जो होती है वो दे इज क्रूशियल फॉर एवरी बिजनेस, नो डाउट अबाउट दैट। अगर फाइनेंस डिपार्टमेंट में कुछ गड़बड़ होती है तो कंपनी फ्रॉड में चला जाता है तो उसका मतलब क्या हो गया? इट्स अ बिग लॉस। द सेम थिंग हैपन्स इन डेटा इंटीग्रिटी। तो वी मस्ट गिव द गारंटी of the accuracy of the data, and all the decisions taken based on such accuracy of the data are correct by every person in the organization. So the organization cannot rely on the data to guide their decisions process if data quality is in question. So if the data quality is perfect, and which, as I told you earlier, AI, artificial intelligence tools are helping tremendously for data integrity, then you can always rely, because it's a machine, it's a software which is helping the machine to monitor and to check the data every second so that it is accurate or not. And their review mechanism of quality assurance team has been reduced because of that, because otherwise for human it is very difficult to see every minute the data and get it cleared. It is very difficult, so they do randomly. But here now AI is checking and reviewing the data generated in the organization very quickly, and if there is something is wrong has happened, it gives the red signal immediately. The concerned people have to address that, and therefore both data quality is equally important as data integrity. Remember. थैंक यू सर। ये डेटा इंटीग्रिटी और डेटा क्वालिटी डेटा के बारे में जो आपने सारी जानकारी प्रदान की कि कितना इम्पोर्टेंट है ये, अभी जो स्टूडेंट्स और जो हमारे जो साथ के लोग देख पा रहे हैं, जो भी यंग प्रोफेशनल्स हैं जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में जाना चाह रहे हैं, उनके लिए बहुत ही लाभदायक साबित होगी आपकी सारी बातें, खास करके स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि जो लैब में वो जाते हैं और वहाँ पर भी अगर वो एक्सपेरिमेंट्स कर रहे होते हैं, डेटा कलेक्ट करते हैं, तो दे ऑलवेज इंश्योर कि जो वो रिपोर्ट करें तो वो रिपोर्टिंग, एक तो रिपोर्टिंग समय पे नहीं करते, या जो हमारे प्रोफेशनल्स हैं वो भी जो आपने कहा काम टालने की कोशिश करते हैं वो ना करें, और दूसरा जो है रिपोर्ट करें जो क्वालिटी एक्यूरेट डाटा है, जो वैलिड डाटा है उसको ही अगर लेकर के आए तो उसी को हम डेटा इंटीग्रिटी तक ले जा सकते हैं। बहुत बढ़िया सर बातें आपने बताई इस पर। एंड इसी से जुड़ा हुआ हमारा अगला प्रश्न है कि जो कलेक्शन है, एनालिसिस है, मैनेजमेंट है क्वालिटी डेटा की, जो कि कंप्लायंस के लिए आ रहा है डिफरेंट रेगुलेटरी स्टैंडर्ड्स में फॉर द FD और WHO और ITC, या फिर जो मेंटेनेंस है
करेंट गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस जो कंप्लायंस है, उसके लिए आप क्या चैलेंजेस होते हैं, आप किस तरीके से उनको, कंपनीज को या लोगों को या पर्सनल्स को जो प्रोफेशनल्स हैं उनको आप अपने सजेशंस देंगे कि वो इस सभी चीजों को मेंटेन कर पाए? दैट्स गुड वन। डॉक्टर साहब देखिए, ये जो डेटा क्वालिटी मैनेजमेंट चीज होती है, तो जी। ये जो सिस्टम रहती है, ये सिस्टमैटिक अप्रोच रहता है टू एंश्योर डेटा एक्यूरेसी, कंसिस्टेंसी, रिलायबिलिटी थ्रू आउट द लाइफ साइकिल ऑफ द प्रोडक्ट, यस। और इट सपोर्ट्स इफेक्टिव डिसीजन मेकिंग एंड द गवर्नेंस ऑफ द प्रोडक्ट एंड द डेटा। तो उसके लिए बहुत सारे स्ट्रेटेजीज बनाने पड़ते हैं, मेथोडोलॉजीज, प्रैक्टिसेस टू डिटेक्ट, अंडरस्टैंड, प्रिवेंट, एड्रेस एंड एनहांस द डेटा क्वालिटी। अभी एफडीए कहता है, यूएस एफडीए और हमारे सीडीएससीओ आल्सो दिल्ली में डीसीजीआई, दैट combination of the regulations and guidance documents and programs including CGMP or GMP, Schedule M, or quality management maturity, quality metrics, etc., are there to ensure the safety, efficacy and reliability of the product. डेटा क्वालिटी जो रहता है वो नो डाउट क्रिटिकल है, एंड द रेगुलेटरी एजेंसीज आर गिविंग हाईएस्ट इंपॉर्टेंस फॉर ड्यूरिंग इंस्पेक्शंस to ensure that submissions of the documents are accurate and reliable to make regulatory decisions. And ये जो accuracy and data which is complete data management जो होता है, जो हमने data integrity में discuss किया अभी, वो priority रहती है, और analyzing the data completely from various sources including quality audit reports, records, मार्केट कंप्लेंट्स, तो वो जो डेटा जनरेट होता है कंपनी में, उसका भी वो हमेशा फोकस रहता है रेगुलेटरी इंस्पेक्शंस में और ऑडिट में, और उसके लिए बहुत सारे गाइडलाइंस है, जीएमपी, शेड्यूल एम, यूएस एफडीए के गाइडलाइंस, आईसीएच गाइडलाइंस, आईसीएच क्यू 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 अलग अलग विषय के लिए क्वालिटी के बारे में। और क्वालिटी मैनेजमेंट मैच्योरिटी जो है, ये अभी यूएस एफडीए का जो इनिशिएटिव है, ये कंप्लायंस के आगे भी जाता है, वो कि आपके कभी भी प्रॉब्लम ना हो आते समय में, और कोई भी पेशेंट का तकलीफ ना हो, हमारा जो डेटा है कंप्लेंट भी आना बंद हो जाएगा बिल्कुल। उसके लिए उसको क्वालिटी मैनेजमेंट मैच्योरिटी बताते हैं, वो बहुत बड़ा अलग विषय है। कभी टाइम मिला तो आगे कभी भी बात करेंगे ये विषय पर उसके। लेकिन मेरी ये एडवाइस जो है हमारे इंडस्ट्री के भाइयों को, बच्चों को, गुरुजनों को, कि वी हैव टू बी ऑनेस्ट, एथिकल, ट्रांसपेरेंट, trustworthy and manage the correct data. There should not be any fraud in data management. Otherwise, we are likely to get non-compliance reports, warning letter, import alerts, losing the credibility of the company, and in turn will have an impact on the business as well. So therefore, we have to be very, very honest and transparent in all our operations. Yes. Sir, we will move to the next question. You Yes. have delivered lectures at numerous scientific conferences, seminars, and workshops globally. Please advise our audience on how they can effectively share their knowledge with the others and become impactful speaker or author. जैसे कि आपने बहुत सारी नॉलेज इकट्ठा की डिफरेंट फील्ड्स में, बट आप इतने अच्छे तरीके से उसको डिलीवर कर पा रहे हैं, लोगों तक पहुंचा पा रहे हैं। अभी आपने जो अभी हमने अपने थोड़ी देर पहले दर्शकों को बताया कि मोर देन अराउंड 600 लेक्चर्स आपने लिए डिफरेंट एरियाज में। तो अभी जो व्यक्ति कुछ सीख रहा है, तो वो दूसरों तक अपनी बात या अपनी सीखी हुई चीजों को कैसे पहुंचा सकता है? आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है डॉक्टर साहब। जस्ट टू गिव यू इन शॉर्ट, ओके,
Yes, sir. information on this. Even today also, which is going on since last more than 3 decades now, that I wake up early morning 4:30 every day. I, after freshening up, I start my reading the data, which is every day I get several blogs, publications, regulatory informations. So ये सब चीजें पढ़ के मैं मेरे नोट्स बनाता हूँ रोज. जी, और कंप्यूटर की वजह से बहुत इजी हो गया लैपटॉप में. हो गया। जी, बहुत सारे मेरे अल्फाबेटिकल फोल्डर्स बनाता हूँ अलग अलग विषय के, और उसमें जो भी नया मटेरियल आता है वो मैं उसमें सेव करके रखता हूँ टू यूज विथ माय ऑडियंस नेक्स्ट टाइम. तो ये नोट्स बनाने के लिए गाइडलाइंस के स्कोप वगैरह एप्लीकेशंस, ये जो इंफॉर्मेशन आती है वो बहुत ही लाभदायक होती है. और ये फोल्डर सब्जेक्ट वाइज होने की वजह से और उसका इंटरप्रिटेशन बना के मैं मेरे नोट्स लिख के रखता हूँ. तो मेरे जो टॉक्स होते हैं, प्रेजेंटेशंस होती है, और उसमें मेरे ये सब अपडेटेड नॉलेज जो है मैं मेरे दर्शकों के साथ, साथियों के साथ, जहाँ भी ऑडियंस होती है उनके साथ में मैं पूरे शेयर करता हूँ लेटेस्ट इंफॉर्मेशन क्या जी, चल रहा है. और ये अप्रोप्रिएट फोरम में यूज करने से विद द रेफरेंसेस, so it helps audience to understand the latest information. Many of them, they don't know certain things. ये एवरी डे तो नहीं हो सकता है, डे टू डे वर्क में उनको भी टाइम मिलना चाहिए सबको. यस तो सर। तो उसकी उसकी वजह से वो बहुत बार नहीं होता है. तो हम जब भी जहाँ जाते हैं अपडेटेड इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं. और on various pharma related subject, I am speaking for last more than 45 years since my Pfizer days. Initially जब भी मैं करियर चालू किया, I was in Cancer Research Institute, यस and सर। then I joined Pfizer, and उसके बाद में मेरा इंडस्ट्री करियर चालू हो गया. तो ये 45 बरस में शुरुआत में मीन्स इन यू कैन से 70s, in 70s period, there was a time when the technology of today was not available for presentations. I remember, Dr. Saab, that जी सर। initially till around 2000, year 2000, we were all using overhead slide projectors, यस सर। transparencies, and writing the transparencies own hand with the sketch pen, or the which is effective on the transparency, that kind of colors. I used to write myself the bullet points and display it during my talk, and go on changing the transparencies every now and then as my talks used to go ahead. Later, we started using small slides, getting prepared from the experts, and displaying it on those days for moving, circular moving those slides, projectors. And I have come in these manners very, very long way, and now enjoying the latest tools like laptop, connecting to the projector, HDMI port, and display it on the screen in HDMI. So I have gone through different stages, right from no technology to current technology, and it जी has helped. And I could do it because of continuous hard work, doing lot of things myself in earlier days. There was no help. Today I have so much help. Even when I retired in 2006 as a global head for quality management in Ranbaxy, I had people to support me. So hard work, there is no choice, and cannot be replaced with anything else. So it definitely pays in the long run
Dr. Saab, and this knowledge sharing and talking about my subject to the audience with collection of such a data has helped me tremendously by always getting several responses from my audience, feedback from my audience continuously, that they are extremely happy. And I have seen so many, even people comment on LinkedIn, that so platform where which is more on knowledge sharing activity from business perspective. So there also I get several comments that they were extremely happy with the latest information shared with them, which never happened elsewhere. So this kind of positive impact also encourages me automatically to do the things. थैंक यू सर। जैसा कि आपने बताया कि इतनी सारी चीज़ें हैं और उन सभी को इतने सालों बाद आपने कहा 2006 में आप कंपनी से जो है रिटायर हो रहे हैं, उसके बाद फिर आपने इतना कुछ किया। जब लोगों के करियर, ज़्यादातर लोगों के जो हमारे दर्शक अभी सुन रहे हैं उसमें से काफ़ी के करियर तब शुरू हुए एंड कभी कभी लगता है कि बहुत कुछ सीख लिया सबने, अब आगे सीखने की जरूरत नहीं है। एंड यू आर सेइंग दैट सुबह उठ करके फिर आप नोट्स बना रहे हैं और यूजिंग दिस टेक्नोलॉजी जो आज आपके सामने है और उसका बेहतर प्रयोग कर पा रहे हैं। तो टेक्नोलॉजी जो है वो उसका प्रयोग करके हम बेहतर सीख सकते हैं और रेगुलरली सीख करके उसमें आगे बढ़ सकते हैं। हमारे सभी दर्शकों को आपके द्वारा बताई गई बातों से बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। सर क्योंकि काफ़ी लंबा समय बीत चुका है और हमने काफ़ी सारी बातें कर ली, तो लास्ट बट नॉट द लीस्ट एक आखिरी प्रश्न है हमारा कि आप क्या मैसेज देना चाहेंगे हमारे उन सभी फार्मेसी प्रोफेशनल्स को जो कि एकेडमी में, इंडस्ट्री में, रिसर्च सेंटर्स पे, मार्केटिंग में, फार्मेसी प्रैक्टिस में या अदर जो फार्मेसी के सेक्टर्स हैं उसमें काम कर रहे हैं और सीखना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, उनके लिए आपका क्या मैसेज है? मैं किसी को एडवाइस और मैसेज देने के लिए बहुत ही छोटा हूँ, लेकिन आप पूछा है तो बताता हूँ कि बी ऑनेस्ट, बी एथिकल, ट्रांसपेरेंट, बी क्रेडिबल इन योर कम्युनिकेशंस, बी पॉजिटिव। जब आप पॉजिटिव रहते हो तो हमेशा आपको सब चीजें अच्छी देखने को मिलती है। आप जब भी पॉजिटिव रहते हो तो वो दर्शाती है अपना ईगल है ना, जो हाईएस्ट एल्टीट्यूड में उड़ता है, जी, flies at a high altitude but doesn't make any noise. You see that no other bird reaches to that level. और सब छोटे छोटे बर्ड तो बहुत ही बात करती है, आवाज आती है उनकी, लेकिन ईगल का नहीं। फिर भी क्वाइटली वो उसका काम चलते रहता है, वो फ्लाई करते रहता है दूर दूर तक। तो ये पॉजिटिव अप्रोच, पॉजिटिव एटीट्यूड इज वेरी इंपॉर्टेंट इन द लाइफ, एंड बिकॉज ऑफ दैट डिफिकल्ट सिचुएशन भी रिलैक्स हो जाती है, क्योंकि बिकॉज आप पॉजिटिव, हमेशा दूसरों के लिए पॉजिटिव सोचना चालू करना जरूरी है हमेशा। एंड ट्रस्ट in yourself, have a confidence in yourself, so you can handle the situations, challenging task smilingly. So keep smiling, my friends. थैंक यू सर। आपके साथ इस सेशन को करके मुझे बहुत ही मजा आया और हमारे सभी दर्शकों को काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। खास करके क्वालिटी डेटा के ऊपर आपने बात की, क्वालिटी बाय डिज़ाइन के ऊपर आपने बात की, एआई के जो यूजेस हैं उस पर बात की और पॉजिटिव रहने के लिए जो चीज़ें ज़रूरत है उस पर भी बहुत सारी बातें की। आपके पूरे जीवन वृत्तांत को भी सुन करके हमारे दर्शकों को बहुत कुछ सीखने को मिला होगा और वो बेहतर इंसान बन पाएंगे, बेहतर प्रोफेशनल बन पाएंगे, ऐसा हम आशा करते हैं। आपने अपना एक बहुमूल्य समय हमको दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आप हमारे साथ आगे भी जुड़े, हम आपसे जो आपकी एक्सपर्टीज़ है उस पर जो प्रश्न हैं, जो चीज़ें हैं वो हम और भी हमारे दर्शकों तक पहुंचाना चाहेंगे आगे आने वाले समय पर, तो उसके लिए हमें आप अपना सहयोग भी प्रदान करेंगे, ऐसी हमारी आशा है। जरूर जरूर। मैं अपने सभी दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा जो इस कार्यक्रम के दौरान हमसे जुड़ रहे हैं और ये कार्यक्रम देख पा रहे हैं। और इसी प्रकार के और भी कार्यक्रम देखने के लिए हमारे साथ हमें सपोर्ट करने के लिए आप हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। और जो भी इस तरीके के प्रश्न हैं, क्वेश्चंस हैं, आपके भी मन में आ रहे हों इस सेशन से जुड़े हुए,
वो आप प्रश्न जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, जो हम अपने एक्सपर्ट तक पहुंचा पाएंगे और उनसे आंसर लेकर के आप तक पहुंचा पाएंगे। आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमारे रंजीत सर का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को, आपके सभी सुनने वालों को, गुरुजनों को मेरा धन्यवाद, और अमित जी को मेरा स्पेशल धन्यवाद। धन्यवाद सर, थैंक यू।